1945 में इस्तीफा दिया था ना फौज से, ब्रिटिश आर्मी से, इंजीनियर्स कोर में थे आप। चलो अच्छा, वो पढ़ के सुनाता हूँ। उनके कोर कमांडर थे ब्रिगेडियर WD विच, रुड़की सैपर्स। उन्होंने रिपोर्ट लिखी थी आपकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट SR। इट इज नो exaggeration to say that I have never met a man in India to touch him. He is as keen as mustard. He works as a clockwork in the office as well as on the columns. दूसरा था बरकत अली is a commissioned gazetted officer and is empowered to sign on my behalf. Brigadier WLD which OBECMG Commandant KGVs O Bengal Sappers Roorkee. सुनो जी जी 22 June 1945. In the name of Allah, the compassionate, the merciful. This is an instrument of abdication. Believe it or not, repeat not. This is true story of my heart. I have finally and firmly resolved to lead my life as a fakir, and as a fakir I am required to give up all, repeat, all I possess. This is my final farewell statement and may be regarded as official. Thereafter I will make no statement. This is final. बरकर अली नंबर 441 KGVs Bengal Sappers Roorkee. फिर की बंदोबस्त होया? हाँ जी। अच्छा, मैं तुम को पढ़े हूँ? नहीं, मैं पढ़दा। पढ़े नहीं, अगे नहीं पढ़े? नहीं पढ़िया नहीं, पढ़दा जी। पढ़ लेने। To the officer commandant number 1 training battalion Roorkee subject। ये पढ़ ले। हाँ जी, पढ़ ले जी। पढ़ ले जी, पढ़ ले। ये पढ़ ले। अच्छा जी। नंबर 441 बरकत अली is placed under open arrest with effect from 11 AM today, the 22nd day of June 1945. Please provide the necessary guard consisted of 2 VCOs immediately. Signatured SO second for commandant। अरेस्ट होए ना जी। फिर उन्होंने मेडिकल केस लिखा रिपोर्ट। तुसी चलो अजे फिर सुन ले। चलो चलो हेलो सो चलो चलो। सलाम। 23 June 1945 states he had a disease for the last 5 or 6 years to become a dervish hermit. This disease increased very much during the last 4 months. Yesterday, the 22nd June 1945, he decided not to continue to work. This led to his being put on a military charge. I was sent for to take him into hospital. This he refused to do, but on persuasion, owing to the facts that he has worked in the same unit as myself for 1 year, 1 TB, he agreed to come only on my account. Major IMS 5 June 1945. Patient statement and complaints. The patient thinks that he had some revelation in his dream and he should now dedicate himself to that. In obedience to that, he now wants to confine his activities to religious duties only. COE looks depressed and extremely asocial, keeps himself busy in religious duties, emotionally unstable and weeps easily. He is docile and gentle in behavior. 30 June 1945. This VCO has been fully observed in the last 1 week. He is docile and gentle in his behavior. He is apathetic and asocial. He keeps himself confined to his religious duties. He is unstable emotionally and easily bursts into tears. He is clean and regular in his habits. He gains an expression of distaste and
ਹਾਂਜੀ, in and adaptability in the present environment. He is a case of anxiety state, severe, unspecified, taking refuge in his dreaming, revelations and religious center. What he has done was under the dictate of strong religious belief and in my opinion not with the intention to deny law and order deliberately. Again, he is an innocent accused and he is an innocent accused. He is an innocent accused and recommend that the charge for which he is under open arrest may be washed and the guard withdrawn. हैं जी? It is almost impossible. आ चीज है जी असल में. It is almost impossible to clear him of religious intoxication and hermetic life. It is almost impossible to clear him of religious intoxication and hermetic life. In the present state, he is useless as a soldier. I therefore recommend him category E, signature Colonel Commandant CMH Roorkee. अदूर उस वक्त की किस किस्म की कैफियत आप ते तारी हुई थी जरा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਮਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਦਾ ਜੀ हाँ जी ठीक है ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸੇ ਨਾ ਉਹ ਜੋ जनरल था ना विच बड़ा सख्त आदमी थी जी मैंने 10 साल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ जी एक भी दिन मैं उनको उसको कोई खराबी नहीं की थी बड़ी अच्छी तरह ना काम करता ਜਦੋਂ फिर मैंने मेरे हो गया ना जी मैंने बुलाया ना सरकारी तौर पे कि मेरी हालत अब कुछ ऐसी हो गई है कि मैं अपने फराइज मसी पूरा नहीं कर सकता मेरे को बड़ा दफ्तर था और कमांडर पूरी इंडिया इंजीनियर्स दा इंजीनियर इंचार्ज सी मैं क्या हूँ मैं सारा ऐसे काम नहीं कर सकता तुसी ऐ करो आपकी शफकात है मेरे पास मोहब्बत मुझको फारिग कर दो ब्रिटिश आर्मी से फारिग कर दो मैं किसी होर आर्मी किसी और आर्मी जा रहे हैं किसी होर आर्मी से चले गया वो कहना ये कैसे हो सकता है मैंने अभी रिपोर्ट लिखी है कि अभी तुम बनेगा वो कि कहेंगे बड़ा आदमी SOMP मेरे लिए सिफारिश की स्टाफ अफसर मैन पावर अच्छा स्टाफ अफसर मैन पावर मुझे हो गया और सब कुछ हो गया फिर वो छुट्टी चले गए एक दिन की वो बड़ा आदमी सी वो दौरे पे गया ना मैंने इस मौके को गनीमत समझा कपड़े उतार दिए और जरा एक अफसर एक इंडियन अफसर होता है वो काला कप्तान कहते हैं उसे काला कप्तान जी उन्हें लिख देता मैं बस दाढ़ी दूढ़ी नहीं बनानी आज उन्हें चिट्ठी लिख दी कि खत्म तो कहना कापियां दफ्तर जरिया ले लो वाले कर दिया वो कहना तुम का ये कैसे हो सकता है मखे तो हो गया वो तो हो गया
ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ उसने मैंने पूछा कि आज मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं हाँ जी आओ। कहना आज काम पे क्यों नहीं गया? तुम बीमार हो? मैं नहीं, घर में तकलीफ है, मैं डीसी लुधियाने को फटाफट बंदोबस्त करता हूँ। मैं कोई नहीं, मैं हुक्म देता हूँ कि 15 आधे घंटे के बाद डंडे हारने के बाद तैयार होकर और दफ्तर में आ जाओ, और जो कुछ तुमने अभी तक दई को चलो चलो तो जो करतूतें तूने की हैं अभी तक ये बड़ी बढ़िया करतूता और सब माफ। मैं महरिया था करतूत पक्की बन गई। जी जी पक्की बन गई। जी जी कहने अच्छा होता नहीं तो फिर डिसिप्लिनरी एक्शन तेरा हो गया। मैं तो आपका लिया। मैंने 3 सजाएं कबूल करी, 12 पत्थर और उम्र कैद और गोली। एंड if you want to shoot me, if you want to shoot me, this can be done now. बस वो कहना लुक इंडियन अफसर। मैं उन्हें कहा उसे कमांडर दे मखलूक ब्रिटिश अफसर। हाय हाय वो तो उस जमाने च नहीं पा सकता। कोई जुर्त नहीं कर सकता, कोई जुर्त नहीं कर सकता अंग्रेज के सामने। जी जी कहना लुक इंडियन अफसर मखलूक ब्रिटिश अफसर। बस चुप कर गया, चुप करके चला गया। वो फिर मैंने कहे आओ जी फिर तेरा बंदोबस्त करिए। मैं बता होना ही है, बंदोबस्त तो तेरा होना ही है। फिर जी गार्ड मिलिट्री गार्ड आके मुझको कैद कर लिया। हाँ हाँ। फिर जी एक मेजर साहब मेरा दोस्त बड़ा अंग्रेज साडी कंपनी च काम करता सी। वो कहना मैनू क्यों ना दसिया तैं जे करतूता करनियां सी, मैनू क्यों ना दसिया? मैं तेन तेरा बंदोबस्त कर रहा। मैं बंदोबस्त तो हो गया ये जो कुछ होना सी। फिर जी उन्होंने कहते ऐसा करो जो मैं कहूँगा मानो। ठीक, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या तेरे ऊपर तेरे बरखिलाफ मत नहीं? मेरा दोस्त है। मैंने आओ मोटर भा लिया। मैंने अंग्रेज IMC बड़ा हुंदा जरा मिलिट्री अफसर मेडिकल अफसर। हाँ जी। फिर जी मैंने पागल खाने ले गए और तो कोई इलाज का इलाज है नहीं थी मेरा। फिर जी मैंने पागल खाने ले गए। फिर पागल खाने च भी बड़ी मुश्किल जिंदगी होंगी है तो रंगा रंग सूरह जुमानी हाँ तर्जुमा। फिर उन्होंने जी मैं ओ जी मैंने जुमा है ना, मैंने अंग्रेजी च लिखा ना उन कमांडर ने कि कल को जुमा है, मैं जुमा पढ़ने जाऊंगा, कोई मुझे रोक कर सकाओ। मैं जुमा का कैद दे जुमा पढ़ने जाऊं। मैंने जो तेरी मर्जी है कल मैंने रोक के फिर अंग्रेजों की फिर मीटिंग हुई कितने हिंदू मुसलमान फसाद ना हो जाए, कोई और ना कोई किस्सा बन जाए। फिर मैनू साडे पिंडां दा सी ना एक सिख उन्होंने ले आए। एक अंग्रेज ने साडे पिंडां दा एक सिख जी मैं जानता सी, उन्होंने जानता। वो कहते बाबा
ओ भाई रब दे वास्ते जो मर्जी है कर ला, सारी जान छड़, जो तेरी मर्जी है कर ला, सारी जान छड़। मैं आखिर नहीं, मैं तो हूं तो मैं जुमे तो जाना ही नहीं, मैं तो कैदी है, कैद में तो जुमे कोई जा नहीं सकता। फिर जी फिर उन्होंने सोच के एक सिरप होंगी है जहर दी, कोबरे दी। फिर वो मैंने मेरा एक डॉक्टर सी ना, अब्दुल अली मलिक डॉक्टर सी ना, मेरे उत्ते लगे है, मुसलमान, बड़ा बड़ा सख्त आदमी। मैंने कहना फिर जांदा जान लगे ना, कहना बात सुनो, कोई दवाई नहीं पीनी, मेरे बताए बिना कोई दवाई ना खाई। मैं एक लेडी आई, एक बड़ी हुई है मैट्रन, वो जी मैट्रन जी आई, उन्हें मैंने लिया के हाई हो फलाना ये तुझे निकालना, आप अच्छे हैं, मैं हाँ जी बड़े अच्छे हैं। उन्होंने मैंने दवाई पड़ाती, वो सी जहर कोबरा बाकायदा मिले तो मंगवाई गई। हाँ बड़ी अंग्रेजा की बेइज्जती सी ना कि अफसर ने जैसे आलालान उन्होंने खिलाफ बोला। हाँ फिर जी मैंने उल्टियां शुरू हो गया, सारा पेन साफ हो गया। जहर अल्लाह की तौफीक की फजल से वो जहर निकल गया। फिर मैं हो गया, फिर आई चेक करने वास्ते, फिर आई भी मर गया। यार चंडे बैठे कपड़े पाए। बाद जो तो फिर मेरा हो गया कोर्ट मार्शल। फिर उन्होंने कहे, मैंने एक पठान कहे कि इसका कसूर क्या है? मुसलमान हिंदू सिख सारे सारे कोर्ट मार्शल भी कहना मड़ा, इस बंदे का कसूर क्या है, मुझे ये बता लो बस। फिर भला अल्लाह करता है, क्या कसूर है? फिर जी मैंने किसी ने कुछ नहीं कहा, बस फिर मैंने अपना वो बिस्तर बनया कि एक शेर भी पढ़े, हूं तक मैं पढ़ नहीं सकता कि सुनते हैं आदम का कैसे बड़े बेआबरू होकर तेरे कैसे हम निकले। हाँ जी। फिर पुराने शरीफ गया, उथे सलाम किया कि लो जी साडे मौजा करियां, होर ना पूछे हो मैनू। फिर कोर्ट मार्शल होके मैं उतनी तरह गया। फिर मेरी माँ कहे कि बोला भी है बोलना चल भी है। हाँ जी, मेरा दास्तान है, ये मेरा बयान है, मैं खुद लिखता हूँ। जब मैं कोर कमांडर के पेश होने लगा, कोर कमांडर ने कर्नल शाह को बाजू से पकड़कर कहा, ये मेरा दोस्त है, मुझसे ज्यादा मुझसे कोई नहीं जानता, वहाँ पढ़ने डॉक्टर पढ़ना। इस तरह पढ़ लो जो कुछ मेरे को है उन पेश कर देता बोलना मैंने कहा सवेरे में जिम्मे आपका हुक्म कॉपी पूरी कॉपी कोर्ट मार्शल ली। बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕੋਈ। मेरे वो मैं दसना वो बहुत मुश्किल है जरा गिरत ना लोग ये है बड़ा मुश्किल। और ये नाल इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ रोशनी हो जाओ, थोड़ी कर लो यानी गिरत सारा दिन। हाँ तज़किरा थोड़ा करो,
थोड़ी कीमत कर। हाँ परहेज करो, जी जी छोड़ नहीं सकते कोई। वाह लो लो पूरी में जाओ, पूरे आ जाओ। वाह उधर भी बारी बारी आ जाओ, बारी बारी आ जाओ। अल्लाह माशाअल्लाह। अगे में हो जाए। मैं जो वो शायर भी सी, उस जमाने में मैं शायर भी सी। चलो भाई उधर जाओ, खैर होगी, चलो चलो वो कहना जब एक चिट्ठी लिख रहा मैं, मेरा एक दोस्त सी चिट्ठी लिख रहा था, सच दे बचन बिच छोले। मिलिट्री कॉलेज में था ना मैं, जी जी तो उसमें दोस्त आना नहीं मेरा मुंडा, वो मेरे बगैर ही सच दे बचन बिच छोले, मिनी मिनी बजे ढोलकी बंबूते मां नावा मित्रा का बोले। हाँ, सवाल कहना